یہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر بھول گیا تھا، بھول چوک پر آپ مجھے درگزر فرمائیں اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیں. تو اب پھر فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. دونوں آگے بڑھے تو ایک خوبصورت سا بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلا کر اسے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی معصوم کی آپ نے جان لے لی، اس نے کس کا خون بہایا تھا، جس کا کوئی قصور نہیں، آپ نے اسے مار ڈالا، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا. حضرت خضر نے کہا کہ حضرت یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی بات میں آپ سے کہوں تو یا کوئی سوال کرو تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، اور یہی میری شرط ہے، اور آپ کا عذر بھی معقول ہے. اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے واپس بھیج سکتے ہیں. تو پھر فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو دونوں ایک قریے میں پہنچے اور جیب میں پیسے تو نہیں تھے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو سارے گاؤں والوں میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ ان کو کھانا کھلائے. تو ایسے میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گھر کی جو دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گرنا ہی چاہتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ ہم دونوں اسے مل کر درست کر دیتے ہیں. تو دونوں نے مل کر اسے ٹھیک کر دیا اور اسے پھر سے انہوں نے دیوار بنا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضرت کم از کم مزدوری ہی تو لے لیتا، یہ کیا ہے کچھ پیسے مل جائے تو ہم کھانا وانا خرید کر کھا لیں. تو حضرت خضر نے کہا آغا فراق بینی و بینک، بھائی آپ نے مزدوری لینے کے لیے کہا ہے نہیں، تو یہ بھی گویا کہ آپ نے ایک طرح کا سوال کیا. اب میرے اور آپ میں جدائی ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کام میں نے کیے اور جس کی مصلحت آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو اب میں بتاتا ہوں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. جس کشتی کا میں نے تختہ اکھاڑ ڈالا تو اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشتی جہاں پر جانے والی تھی تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، اور وہ ہر اچھی کشتی کو وہ لوگوں سے غصب کر لیا کرتا تھا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کروں تاکہ کم از کم یہ دیکھ کر کہ یہ تو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان کی اس کشتی پر قبضہ نہیں جمائے گا. تو اس طرح میں نے ان کا تختہ توڑ کر ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کشتی کو غصب ہونے سے بچا لیا، اور اس طرح سے میں نے ان کے اوپر احسان کر دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جہاں تک جو لڑکا ہے آپ نے دیکھا تو اس کے ماں باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو ہم اس بات سے ڈر گئے کہ یہ آئندہ چل کر سرکشی اور کفر کے ساتھ ان دونوں کا خون نہ بہا دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی بہتر اور پاکیزہ اولاد اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لڑکا ان کو عطا کرے. تو ہم نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس کے والدین کو ایک دوسرا بیٹا دے گا جو کہ نہایت شریف، پاک باز اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دو یتیم بچوں کی ملکیت میں وہ دیوار تھی جو کہ شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور
इस दीवार के नीचे उनका एक खजाना था। वकाना अबूहुमा सालिहा, जो इन दो बच्चों का बाप था वो बड़ा ही नेक था। फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, तो तुम्हारे रब ने ये चाहा कि ये दोनों अपनी जवानी को पहुंचे इस्तखरिजा कंज़हुमा, और अपने खजाने को निकालें। अगर वो दीवार गिर पड़ती, खजाना बाहर पड़ जाता, लोग उसे निकाल लेते और उससे ये यतीम बच्चे महरूम हो जाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये हुक्म दिया कि आप इस दीवार को बना दें, ताकि जिस वक्त ये बच्चे जवान हो जाएं तो फिर उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा और वो खुद अपना खजाना निकाल लेंगे। और आपने मजदूरी लेने की बात कही, यतीमों को दिया जाता है, यतीमों से लिया नहीं जाता। रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सबरा। ये जो कुछ मैंने किया तुम्हारे रब की रहमत से किया, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सबरा, ये उस बात की तावील है जिस पर कि आप ज़ब्त नहीं कर सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सारे वाक़ये में जो बात हमें जिस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुज़र उस बस्ती वालों पर से हुआ। बस्ती वालों ने कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं, और वो दीवार जो कि गिर रही थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हज़रत खिज़र को था कि आप इस दीवार को बनाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी जो तौजीह बयान की वो इसलिए अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया, वो कान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बड़ा नेक, अल्लाह वाला, मुत्तकी और परहेजगार था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप की नेकियों की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन यतीम बच्चों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ कफालत की, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मुस्तकबिल को इस तरह ताबनाक बनाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं के घर की दीवार के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खजाना पैदा कर दिया। और वक्त के दो अजीम शान पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया कि जाओ फला गांव में, फला करिए में फला दीवार गिर रही है, वो दो यतीम बच्चों की है, जाकर उस घर की मजदूरी करो और उस दीवार को बनाओ। किस कदर प्यारे होंगे वो बच्चे जिनके घर की मजदूरी अल्लाह ताला के दो मुकद्दस पैगंबर कर रहे हैं, और उन्होंने उस दीवार को बनाया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज बहुत सारे मुसलमान और हम भी हर एक की ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो, हमारे बच्चे हम जितने जैसे हैं हमारे से अजीम बने, हम जितना कमा रहे हैं हमारे से ज्यादा कमाएं। और हर एक इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो, और इसी के लिए इंसान इस दुनिया में क्या क्या दौड़ धूप नहीं करता। हम जो आए हुए हैं तो यही मकसद है कि कितने ऐसे लोग हैं कि उनको सही तौर पर खाना नहीं मिल रहा था, सही तौर पर उनके औलाद को ग़िज़ा नहीं मिल रही थी, कि हम तो जाहिल रह गए, चलो कुछ मेहनत मजदूरी करके जाएंगे, जाकर कुछ कमाएंगे, बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे, उनको अच्छा पहनाएंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, उनको और कुछ बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे, इंजीनियर्स बनाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें हर एक के जहन में रहती है। और इसी के लिए इंसान इतनी कोशिशें करता है कि अपने मुल्क को भी छोड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ता है, अपने वतन की मिट्टी को छोड़ता है, और इस ख्वाब को सजाने के लिए यहाँ पर आता है। कुछ लोगों की किस्मत यावरी करती है और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, तो वो किसी अच्छे जगह पर पहुंच जाते हैं और माशाल्लाह वो कमाते भी हैं और खुद भी आबाद होते हैं, अपने बच्चों को भी वो आबाद करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं, आने के बाद किस्मत उनका साथ नहीं देती, और कितने ऐसे लोग हैं मेहनत मजदूरी पर जाते हैं, किसी हादसे का शिकार होकर चले जाते हैं। बच्चे जो कि इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा बाप आएगा, हमारे लिए कुछ लेकर आएगा, हमारे सारे के सारे ख्वाहिशात को वो पूरा करेगा, लेकिन ये कि उसके बाप की लाश उनको ताबूत में उनके घर पहुंचती है। कितने ऐसे लोग हैं कि उनको अपने
मुल्क की मिट्टी भी नसीब नहीं होती, और वो यहाँ पर आते हैं और यही पैबंद ज़मीन हो जाते हैं। बल्कि इस तरह के वाक़यात कई हैं। खुद हम जहाँ पर रहते हैं तो हमारे यहाँ का ही एक आदमी था, तो वो सऊदिया में गया तो एक टैंकर फट गया, ऑयल का टैंकर फट गया, और उसी में वो बेचारा वहीं जल कर राख हो गया। और जिस वक्त वो गया था तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो साल का 2.5 साल का, तो उसकी माँ उससे ये कहती थी कि तेरा बाप आएगा, तेरा बाप आएगा। वो बच्चा वो पूछता है अब्बा जान कब आएंगे, वो रोजाना उससे तसल्ली देती, नहीं आज नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो वो चिढ़ कर कहता तुम रोजाना तो ये कहती हो कि आएंगे आएंगे, कब आएंगे, कितने साल में इंतजार करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह की भी हकीकत है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो कि आते हैं और आने के बाद वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के बजाय तो बल्कि ये होता है कि उनकी हयात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और वो यही पैबंद खाक हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ दिया, तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स, और कोई ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, कोई बरतानिया भेज रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज रहा है। अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी हमने ये भी गौर किया कि हम उनको नेक बनाएं? अगर हम नेक हों तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हमारी औलाद को ज़ायो बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी औलाद को कभी ज़ायो बर्बाद नहीं करेगा। बल्कि मैं खुद इस बात का ये हूँ कि जिस वक्त हम पुराने जदीद के मरकज़ में थे, एक हमारे साथ एक बाजवा साहब रहते थे, उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाया वो, और फिर यहीं भी वो जेट से रिटायर्ड होकर चले गए। तो बाद में जो लोग जाने आने वाले हैं तो उनसे ये पता चला कि उनके बच्चों ने यहूदी लड़कियों से शादी की। अपने माँ बाप को उन्होंने पहचाने से